Hello guys, welcome to my YouTube channel, Data Research. On the last lecture, we have learned on what is linear regression. Okay, so we covered that what is linear regressions and what is it? It is algorithm and it is basically work on the linear data. Okay, and now in today's class, we will learn the intuition behind it. What is the intuition of linear regression? Okay, so let's start. Um we have this y-axis and x-axis. Okay, let's say um, this is y. Okay, uh, and here we have salary. Here we have experience. Okay, we have this type of data. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6, 7. Okay, and for 1 year, 20K, then 30K, then let's say 40K, 50K, 60K, let's say 100K. Okay. Hmm. Uh, okay. Uh, Maybe plot the data. Let's say for 1 year, it could be 20. For 2 year, it could be like 25, or for 3 years of experience, could be like 40. Hmm. For 4 years, it should be say 45. And let's say we have this type of, okay. Let's say we have this type of data. Okay. And we pass the line from here, like so. This is our regression line, and we called it is also the best fit line. Okay. In a technical term or in machine learning term, this line we called as a best fit line, and we want this line in an actual scenario. But think it, can you get the data in real world in a linear data form? Can you get? No, right? It is not possible to get the data in linear form. You always get a data in the non-linear form. And machine learning is a technique. It is not only to get the prediction of future. It is nearer to close the future. Okay, it just only give the predictions nearer to that value. Okay, that is what. Okay, so that actually linear regression do here in the experience and salary. Okay, so in real world scenario, we don't have the data in the linear form, but the linear regression is work on the best fit line. Okay, so we have to find the best fit line. What will be the best fit line? Will be okay, will be good for our algorithm, for our model. Okay, let's say, um, let's say I pass this line like this. Okay, and
passing line also like this. Okay, let's say we have first line, second line. Okay, now we have to find which one is the best fit line. Okay, आप सोच के देखो. अब मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ करी है. ये पहली, और ये ब्लू वाली दूसरी, और ये ग्रीन वाली तीसरी. ओके, तो आप सोच के देखो कि कौन सी लाइन अच्छे से काम करेगी. आप सोच के देखो. आप बता सकते हो इसका आंसर. सोच के देखो. अगर 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 मैं अगर मैं एक लाइन ऐसी पास करता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये लाइन सही से काम कर रही है, ये ऑरेंज लाइन सही से काम कर रही है? नहीं, राइट. ओके, सो now among these 3 lines, which one is the best fit line? We have to find it. Okay, so best fit line is nothing but the regression line, and it is actually work on the this equation. Y is equal to mx plus c. M is nothing but the slope, x is an independent variable, and c is nothing but the intercept. Okay, nothing but the intercept. So you have to find it. nahi. So if we have to find it, which is the best fit line. Okay. So how can we find it? Let's think. How can we find it? So we have the method. Okay. If we need to calculate. Hmm, we need to calculate. See, this is the point. This is our actual point. Okay, and this is the best fit line. Okay, and this is the best fit line. इट मीन्स आपका मॉडल क्या कर रहा है कि इतनी गलतियां कर रहा है. ओके, इस पॉइंट पे इतनी गलती कर रहा है, इस पॉइंट पे इतनी गलती कर रहा है. ठीक है, और इस पॉइंट पे इतनी गलती कर रहा है, और इस पॉइंट पे इतनी गलती कर रहा है. ओके, हम इसको कंसिडर करते हैं 0, O1, O2, O3. ओके, ये O जो है वो मैंने ऐसे समझने के लिए लिया. तो अब ये किसके बेसिस पे काम करता है? ये काम करता है डिस्टेंस के बेसिस पे. ये काम करता है डिस्टेंस के बेसिस पे. अब ये क्या करेगा? ये जो O1, O2, O3 है, आपका मॉडल कितनी गलती कर रहा है वो देखेगा. अब ये क्या करेगा? O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस O4. ये क्या कर रहा है? ये गलतियों को क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है. ठीक है. अब व्हाट इफ अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, खाली प्लस करने की बजाय मैं इन टर्म्स को स्क्वायर कर दूं. अब आप पूछोगे सर, why you are doing a squaring term here? Okay, see in that line there is some of points are below the line and some of points are above the line. It means there is a negative magnitude and positive magnitude also. And here what we do actually, here we are doing the addition. And if you are doing addition, it means the sign are affecting it. Minus sign will be affecting it, and the result will not be reflected as we need. Okay, so for converting negative to positive, we are squaring this term. Now you thinking, why we are not, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं. You are thinking, now you will be think, sir, now you will be think, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं. हम मॉडल्स भी तो दे सकते हैं. मॉडल से तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. लेकिन हमने स्क्वायर ही किया. अब ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको पूछ भी सकते हैं कि वाई यू आर स्क्वेयरिंग. ठीक है, तो बेसिकली हम स्क्वायर इसलिए करते हैं कि जिस पॉइंट पे आपका मॉडल ज्यादा गलती कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे आपका मॉडल ज्यादा गलती कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका मॉडल ज्यादा गलती कर, तो ये क्या करेगा? इसको पिनलाइज करेगा. इसको क्या करेगा? ये पिनलाइज करेगा. इसको क्या करेगा? ये स्क्वायर करेगा. ठीक है, इसको क्या करेगा? ये डबल कर देगा. ओके, तो इसको क्या, ये आप डिस्टेंस है ना, तो इसको डबल कर देगा. तो इसको ये करने के लिए
और हमें स्क्वायर टर्म यूज करना पड़ता है, तो ये याद में रख रहा, दैट्स व्हाई वी नॉट यूजिंग मॉडुलस, वी यूजिंग स्क्वेयरिंग द टर्म। आपको पूछ सकते हैं स्क्वेयर। ओके, ये हो गया अभी ग्रीन। अब ऐसे ही मैं ये तीनों का भी बनाऊंगा, पिंक और ब्लू। अब हम पिंक और ब्लू का लेट्स से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर d2 एंड d4। ठीक है, अभी ये लेट्स से पिंक का हो गया, और हम और एक बार ब्लू का करेंगे। तो उसमें से जिसका जिस भी लाइन का डिस्टेंस कम होगा, जिस भी लाइन का डिस्टेंस कम होगा वही तो है हमारा बेस्ट फिट लाइन। ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, sum of square, and this should be minimum. If this should be minimum, we need to find the best fit line, so that sum of the square should be minimum. We need, ओके, तो अभी ये आप, तो अभी 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 हमें ये फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी लाइन है कि जिसका स्लोप और इंटरसेप्ट हमें ऐसा मिलेगा कि उसकी वजह से ये सम ऑफ स्क्वायर जो है ये हमारा मिनिमम रहेगा, ये हमारा लेस रहेगा। हमें ऐसी लाइन फाइंड करनी है, तो हम ऐसी लाइन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप मुझे बोलोगे कि सर हमने ऐसी सेगमेंट ही क्यों ड्रॉ की। ठीक है सर, हमने सेगमेंट ही क्यों ड्रॉ की, तो मैं आपको इसकी भी वजह बताता हूँ एक। मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, मेरे पास ये एक लाइन है, ओके, और ये है वाई, और ये है एक्स। ओके, अभी मेरा यहाँ पे पॉइंट है, 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 यहाँ पे पॉइंट है। अब आप बोल रहे हो, अब आप पूछोगे कि सर हमने सेगमेंट ही क्यों ड्रॉ ड्रॉ की। ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ऐसी भी तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप खुद ही सोच के देखो कि अगर हम ऐसी लाइन पास करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जब आपका आपका डेटा ट्रेन होगा, तो ट्रेनिंग डेटा पे ये क्या कर रहा है, ये 100% काम कर रहा है। ट्रेनिंग डेटा पे क्या है, ये बिल्कुल 100% काम कर रहा है। जिस जो भी आपका एक्चुअल पॉइंट है, प्रेडिक्शन भी आपको वही दे रहा है, एकदम 100% काम कर रहा है, आपको 100% रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर आपका नया पॉइंट आ गया, ठीक है, अगर आपकी सैलरी हो गई 10 ईयर की, और वो बोल रहा है कि ये हो गया भाई, यहाँ पे इसकी सैलरी इधर आएगी, 1 लाख के ऊपर आ जाएगी, और 1 लाख के ऊपर आ जाएगी, और आपका आपका मॉडल बोलेगा उसकी सैलरी इतनी होगी, आपका मॉडल बोलेगा उसकी सैलरी इतनी होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है? नहीं, राइट। ये क्या हो रहा है, आपकी टेस्टिंग जो एक्यूरेसी है वो कम हो रही है। ट्रेनिंग में तो आप अच्छा काम करोगे, लेकिन लेकिन टेस्टिंग में क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। ओके, तो इसीलिए हमें ऐसे पॉइंट चाहिए जो नियरर टू प्रेडिक्शन हो, जो नियरर टू दैट एग्जैक्ट वैल्यू हो। जैसे कि अगर 60,000 वो लेगा, एटलीस्ट अपने मॉडल ने 58 तो भी दे बताना चाहिए। ओके, तो ये हो क्या होना चाहिए, ये नियरर टू क्लोज वैल्यू ऐसा बताना है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, अगर हम ऐसी लाइन पास करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये ओवरफिट हो रहा है। ये ट्रेडिंग पे तो अच्छा काम कर रहा है, एकदम 100% काम कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग में ये बहुत बुरा असर कर रहा है, और हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें अपने मशीन लर्निंग मॉडल में हमेशा जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए। कैसा मॉडल चाहिए, जनरलाइज मॉडल, जिसकी जिसका वेरिएंस भी कम हो, जिसका बायस भी कम हो। ओके, हमें ऐसा मॉडल चाहिए, ओके, जिसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी हो और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी हो। तो ये हमें कैसे मिलेगी, अगर 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 हम इसमें से ऐसी लाइन पास करते हैं।
अगर हम इसमें से ऐसी लाइन पास करते हैं तो क्या आप कह सकते हो कि ये इतना ये ये आपका एक्चुअल है और ये आपका प्रेडिक्टेड बता रहा है, ठीक है। तो क्या है, आपका मॉडल क्या है, थोड़ा नियर टू दैट वैल्यू, नियर टू दैट वैल्यू, तो ये आप कह सकते हो कि ये अपना बेस्ट मॉडल है, कह सकते हो आप। इसीलिए हमें सेगमेंट चाहिए होती है, इसीलिए हमें बेस्ट फिट लाइन चाहिए होती है, इसलिए हम ये ऐसी कर्व वाली लाइन यूज नहीं करते। आई होप आई होप आपका इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये हम इस पे आते हैं कि ऐसी कौन सी बेस्ट फिट लाइन हमें मिलेगी कि जिसका सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम होगा। ओके, तो हमें ये लाइन अभी फाइंड आउट करनी, तो ये लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। हमारे पास दो मेथड, फर्स्ट वन इज OLS, दिस इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके। और दूसरी है ग्रेडियंट डिसेंट, ओके। ये हमारे पास दो मेथड है। ये मेथड स्टैटिस्टिक्स पे बिलोंग करता है, ओके। और ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड आपको बेस्ट स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करके देगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम रहेगा। और वही लाइन हमारी क्या होगी, बेस्ट फिट लाइन। वही लाइन हमारी क्या होगी, बेस्ट फिट लाइन। वही तो लाइन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप कि लीनियर रिग्रेशन का जो आपका इंट्यूशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे OLS और ग्रेडियंट डिसेंट, हमें कैसे हमें कैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये हमें कैसे मिलती है, और कैसे हमारा मॉडल वो बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करता है, ओके। ओके, आई होप आपका ये क्लियर हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।